So yesterday we have started our data types, है ना? हमने data types चालू किया था. So can you tell me what is data type? Rishad, Rishad Patan, are you there? Rishad Patan. Okay, चेतक, मेरी आवाज आ रही है? चेतक, नहीं आ रही मेरी आवाज किसी को? Okay, चेतक, are you there? Okay, Aryan Fulsunge. Okay, can you tell me what is data type? Okay. Yeah. Int, double, char, float. Yes. But can you tell me formal definition of data type in your own language? Okay. चलेगा. आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं. Yes, exactly. Type of data है ना? Yes, data type is nothing but type of data. Okay, that you are going to define in your program. आप प्रोग्राम में जो भी डेटा डिफाइन करने वाले हो उसका टाइप हमको अगर डिफाइन करना है, so we have to use data types. Okay, and I have says yesterday there are mainly 4 primitive data types. Those are Aryan. हाँ, 4 नहीं बेटा, कैर 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 int, float. Yes, double. Okay, that is also used for floating point number. Okay, but long floating point number we have to use, है ना? In case of double, data type we can use long floating point number. Okay, and in case of float we can use short floating point number. Okay, yeah. Okay, but in both we have to use decimal point values, है ना? Float and double, in both cases we have to use floating point number, decimal point numbers we have to use. Okay, but difference is there, some difference is there. Okay, in the floating point number we can store shortest floating point value, and in and in double data type we can use long floating point number. Okay, so as I say yesterday, again qualifiers we have seen, है ना? Qualifiers are nothing but the thing which is used to increase the list of data types, है ना? Data types की list हमको अगर increase करना है, not only primitive data types, we can generate more than those primitive data types. Okay, with the help of qualifiers का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप्स की लिस्ट बढ़ा सकते हैं. ओके, सो देयर आर मेनली 2 types of qualifiers, that is sign qualifier and size qualifier, है ना? Now sign qualifier is subdivided into 2 categories, that is signed and unsigned, है ना? Yesterday we have seen sign qualifiers. Okay, so those are subdivided into 2 categories, है ना? These sign qualifiers are subdivided into 2 categories, signed and unsigned. Okay, these sign qualifiers are subdivided into 2 categories, signed qualifier and unsigned. Okay, signed and unsigned. Okay, with the help of these two sign qualifiers we can increase the list of our data types, है ना? हम इन क्वालिफायर का यूज करके हमारे डेटा टाइप्स की लिस्ट बढ़ा सकते हैं. ओके, हम few more students want. हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? ओके. Let me see, somebody wants to join in meeting. सिद्धार्थ, बेटा जल्दी ज्वाइन किया करो ना रे.
ओके, लेकिन फिर भी ओके ट्राई करो कि जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। सिया, सिया नाकोरिया, आर यू देयर? सिया नाकोरिया, ओके नाउ, ओके now as I said earlier, signed qualifiers are subdivided into two categories, signed and unsigned. In this way, size qualifiers also subdivided into two categories, that is short and long. Okay, so with the help of these qualifiers, we can increase the list of our data types. हम लोग इन qualifiers का यूज करके हमारे डेटा टाइप्स की लिस्ट इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, ताकि हमारे पास ज्यादा डेटा टाइप्स है ना, उनका यूज हम लोग प्रॉपरली कर सकें, मीन्स प्रॉपर वैल्यू के लिए वही डेटा टाइप यूज करें जो उन्होंने प्रेफर्ड किया है। ओके, फॉर दैट रीजन we have to increase our data types list. Okay, so with the help of these qualifiers we can increase the list of data types. Okay, इन qualifiers का यूज करके हम लोग डेटा टाइप्स की लिस्ट बढ़ा सकते हैं। Okay, now how, that I am going to tell you here. Okay, basic data types. Data types with type qualifiers. Is that visible to you, everyone? नहीं दिख रहा? Next is size in bytes. Okay, size in bytes and the range. Range. As I said earlier, that every data type it has their own range, है ना, हर एक डेटा टाइप की उनकी खुद की एक रेंज है। उस रेंज के अंदर कोई वैल्यू अगर आपको यूज करना है तो ही आप उस टाइप का यूज कर सकते हैं, है ना। उस रेंज के अंदर की कोई अगर वैल्यू है तो ही आप उस टाइप का, सॉरी, वो डेटा टाइप आप यूज कर सकते हैं। ओके, अगर उस रेंज में नहीं है तो उस डेटा टाइप को आप यूज नहीं कर सकते फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, so that should be remembered. Okay, now our first basic data type is char. Okay, char. As I said earlier, this char data type is used for character type values, है ना। character type values के लिए अगर हमको कोई data type use करना है, so that is nothing but char data. Okay, now type qualifier, data types with type qualifier means हम टाइप क्वालिफायर का यूज करके, क्वालिफायर्स का यूज करके हम लोग इस, ये जो चार डेटा टाइप है आपका, उसकी लिस्ट इंक्रीज करें। मीन्स विद द हेल्प ऑफ क्वालिफायर वी कैन इंक्रीज द डेटा टाइप्स लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्वालिफायर का यूज करके हम नए नए डेटा टाइप्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर कैरेक्टर टाइप वैल्यूज। ओके, सो दोज आर char और signed char. ओके, पहला डेटा टाइप है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। विद द हेल्प ऑफ क्वालिफायर we are increasing the list of that character data type. Okay, so first qualifier we have used, that is signed. Okay, signed char. Okay, either we can call it simply char or signed char. Okay, हम simply char यूज कर सकते हैं या तो फिर signed char, both are same. Repeating, char or signed char we can use. Okay, now size in bytes means
अगर आप चार डेटा टाइप की वैल्यू या तो फिर साइन चार डेटा टाइप की वैल्यू अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो उस वैल्यू को कितना मेमोरी रिक्वायर्ड है दैट आई एम गोइंग टू राइट ओवर इन द थर्ड कॉलम दैट इज साइज इन बाइट्स। ओके, मींस उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी रिक्वायर्ड है दैट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी रिक्वायर्ड है वो हम इस थर्ड कॉलम में लिखने वाले, दैट इज साइज इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। बाइट्स के टर्म में हम लोग लिखने वाले। ओके, तो क्यार या तो फिर साइंड क्यार टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए 1 बाइट इज रिक्वायर्ड। ओके, 1। These all values that I'm going to write in the third column are in terms of bytes. Okay, bytes के term में है. Okay, so don't call it as one. Okay, it is not only one, it is one byte. Okay, it is one byte. That means char or हाँ बोलो। किसी को नहीं दिख रहा बेटा? बेटा क्या नहीं दिख रहा वो बता हमको अभी। No, you are talking about it, nothing is displayed, है ना? आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? क्या हो रहा है? ब्लैक स्क्रीन दिख रही है पूरी? ओके, मेरा वॉइस भी ब्रेक हो रहा है? ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी फिलहाल सुन लो, मैं वीडियो वैसे भी डालने वाला हूँ। ओके, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, वीडियो डाल दूंगा, आप तब देख लेना। ओके ओके, अभी फिलहाल आप सुन लो, है ना? वैसे भी क्लासरूम में आप सुनने वाले थे, तो अभी भी सुन लो, आप बाद में वीडियो देख लेना। ओके, अरे बेटा माइक ऑफ करोगे तो ही आपको सुनाई देगा ना। ओके, सो to store character type value, or we can say that signed char type value. Okay, your 1 byte memory is required. Means if you want to store character type value, it will require 1 byte of memory. Okay, 1 byte of memory. Okay, that I'm going to write over here in the third column. Okay, and the range of values for this type of value that I'm going to write in the fourth column, that is range. Okay, so minus 128 to 127. Okay, so within this particular range, we can store that value in the character data type variable. Okay, means इस range की जो भी value है, उस value को अगर आपको use करना है, तो आपको क्या use करना पड़ेगा? ये data type use करना पड़ेगा। Okay, remember हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग कैरेक्टर्स को भी नंबर्स में स्टोर करते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। ओके, एंड दैट इट कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइक दिस। ओके, 128 minus 128 to 127, this is the range for the particular characters. Okay, minus 128 to 127 is the range for character type values. Okay, तो कैरेक्टर्स को भी हम लोग क्या करते हैं? नंबर्स में स्टोर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। ओके, बिकॉज आवर सिस्टम अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ओके, हमारा सिस्टम सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। हम जो भी लिखते हैं, हम जो भी टाइप करते हैं, वो उसको समझ में नहीं आता। दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इन its own language, that is binary language, and then it will store into its memory. Okay, so everything will be stored in terms of binary, in terms of bits. Okay, in terms of bits, that is ones and zeros. Ones और zeros के फॉर्म में वो स्टोर करता है। Okay, so ones and zeros are nothing but numbers, binary number. Okay, and that it can calculate. Okay, वो कैलकुलेट करता है और फिर स्टोर करता है। वैसे अगर आपको डिस्प्ले भी कराना है, तो जो भी नंबर है उसमें स्टोर, उसको सबसे पहले आप जो भी लैंग्वेज में समझते हो उसमें कन्वर्ट करता है, और उसके बाद फिर आपको डिस्प्ले करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन क्या करना है, आपको रेंज ध्यान में रखने की। इस कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप में आप कौन सी टाइप की वैल्यू, कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं।
Okay, that is nothing but range. Okay, so minus 128 to 127 is the range of values for character or signed char type value. Okay, are you getting? Next is unsigned char. क्या हो गया तुम? अरे नहीं नहीं बेटा चल रही है क्लास की नहीं ना। हाँ ठीक है तुम फिर से ज्वाइन करो मैं एडमिट कर दूँ। Aryan, are you there? Aryan, आज नेट का बहुत इशू है क्या? ओके ओके, मैं फिर भी बेटा मैं वीडियो लोड कर दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके ओके, कैन यू सी दिस? ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग क्वालिफायर्स का यूज करके डेटा टाइप्स की लिस्ट हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमने क्वालिफायर का यूज करके कैर डेटा टाइप के दो टाइप हमने क्रिएट किए। एक साइंड कैर है और दूसरा अनसाइंड कैर है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द लिस्ट ऑफ आर बेसिक डेटा टाइप्स। ओके, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो भी है कैर, इंट, फ्लोट एंड डबल, ओके, उनकी लिस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वालिफायर्स। ओके, नेक्स्ट, so here we have created one more character data type, that is unsigned char. Okay, and this type of value, to store this type of value, again we have to use hello अच्छा राजगोपालाचारी वर्ड भंडारा, राजगोपालाचारी वार्ड भंडारा, जेएम पटेल कॉलेज, राजगोपालाचारी वार्ड भंडारा, 441904। ओके, पिन पिन सांगतो 441904 4। ठीक है, हाँ हो हो, जेएम पटेल कॉलेज है, जेएम पटेल कॉलेज भंडारा। Okay, so you can see here we have created two data types for this one basic data type, that is क्या है ना। हमने यहाँ पर दो डेटा टाइप क्रिएट किए कैरेक्टर के लिए, जैसे कि साइंड कैर और अनसाइंड कैर। ओके, to store this type of value, unsigned character value, again we have to your system will require one byte. Okay, one byte will be allocated to store this type of value. One byte will be allocated to store this type of value, that is unsigned character value. Okay, so again I am going to write over here, that is one byte. Okay, all these values are in terms of bytes, remember, because I have write over there size bracket में bytes लिखे हैं, so all these values I have written into the third column, those are in bytes. Okay, so again I can say that here unsigned char type value को store करने के लिए हमको कितना byte required है, 1 byte is required. Okay, to store this unsigned char type value 1 byte will be required. Okay, next, its range is 0 to 250. To store this type of value, 1 byte is required,
and its range is 0 to 255. Remember, आपने देखा होगा साइंड कैर में नेगेटिव वैल्यू भी है, ओके, और पॉजिटिव वैल्यू भी है, लेकिन अनसाइंड कैर में नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ओके, बिकॉज इट इज अनसाइंड मीन्स देयर इज नो साइन, ओके, दैट मीन्स देयर इज ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ओके, देयर इज ओनली पॉजिटिव वैल्यू दैट आई से इन द yesterday's lecture, okay. So unsigned char will require one byte of memory and the range of value that is nothing but 0 to 255, okay. Next, now our next basic data type is integer. Integer, okay. Remember, आप डेटा टाइप, ये जो भी डेटा टाइप्स है ये क्या है, कीवर्ड्स है, ओके, और कीवर्ड्स के हर एक कैरेक्टर आपके लोअर केस में रहते हैं, कीवर्ड के हर एक कैरेक्टर्स लोअर केस में रहते हैं, इतना ध्यान में रखना। आपको भले ये सी कैपिटल लग रहा होगा लेकिन ये कैपिटल नहीं है। रिमेंबर, कीवर्ड्स के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सारे कैरेक्टर्स को हमको लोअर केस में ही लिखना है, ओके, इतना ध्यान में रखना है, ओके। नाउ इंटीजर, ओके, फॉर दिस basic data type we are going to increase the list, okay, with the help of qualifiers, that is signed, unsigned, short and long, okay. So integer or signed integer, okay, integer or signed integer, okay. Remember, दोनों के बीच में स्पेस है, साइंड अलग है और इंटीजर अलग है, साइंड इंट, ओके, डोंट कंबाइन देम, ओके, दोनों को कंबाइन नहीं करना, ओके। एंड टू स्टोर दिस टाइप ऑफ वैल्यू it will require 2 bytes of memory. To store this kind of value, it will require 2 bytes of memory. 2 bytes required. Okay. So hence I am writing over here 2. Okay. That means to store this type of value, it will require 2 bytes. 2 bytes are required to store this type of value, integer or signed int. Okay. Again, its value or its range is minus 3 2768 to 32767. Okay, its range is minus 32768 to 32767. Okay, मीन्स इस रेंज की वैल्यू को अगर आपको प्रोग्राम में यूज करना है तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, आइदर वी कैन यूज इंट, सिंपली इंट और साइंड इंट, ओके। रिमेंबर, यहाँ पर भी साइंड इंट है, दैट मीन्स देयर शुड बी नेगेटिव वैल्यू, ओके, साइंड इंट है दैट मीन्स देयर शुड बी नेगेटिव वैल्यू, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, बोथ, ओके, both are comprises under this category, okay, but in unsigned case there should not be negative value. In case of unsigned there should not be negative value, ध्यान में रखना, unsigned में negative value नहीं रहती, okay. So unsigned int, okay, unsigned int, so again it will require 2 bytes, okay, it will require 2 bytes to store unsigned int value, okay. अनसाइंड इंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी 2 बाइट्स रिक्वायर्ड है, ओके, मींस साइंड इंट रहे चाहे अनसाइंड इंट रहे, आपको उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स मिलेंगे, सिर्फ 2 बाइट्स मिलेंगे, ओके। विद इन दिस 2 बाइट्स वी कैन स्टोर दिस टाइप ऑफ वैल्यू, रिमेंबर, एंड इट्स रेंज इज स्टार्टिंग विद 0 to 65535, ओके। So its range is 0 to 65535, okay. तो इस रेंज के अंदर आप कोई भी वैल्यू अनसाइंड इंट में स्टोर करके रख सकते, okay. Are you getting? To store this within the range of this particular value, आप अनसाइंड इंट डेटा टाइप का यूज कर सकते हो, ओके, मीन्स इस टाइप का आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और उस वेरिएबल में आप वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो भी इस रेंज के अंदर की है वो, ओके। सो रिमेंबर एवरीवन, साइंड इंट में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों रहते हैं, उसकी रेंज अलग है,
अनसाइंड इंट में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहती है और उसकी रेंज अलग है। ओके, इट शुड बी स्टार्ट्स विद डिजिट, डिजिट जीरो से स्टार्ट हो गया हमारा अनसाइंड इंट का रेंज, अनसाइंड कैर का भी रेंज हमारा जीरो से ही चालू होता है, लेकिन साइंड में नेगेटिव वैल्यू से हमारा रेंज चालू होता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू तो खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट इंट और साइंड शॉर्ट इंट। और साइंड शॉर्ट, ओके, शॉर्ट इंट ये अब हमारा नया क्वालिफायर है ना, साइज क्वालिफायर। अभी तक हमने सिर्फ साइन क्वालिफायर के बारे में सुने थे, अभी हमारे पास एक नया क्वालिफायर है दैट इज साइज क्वालिफायर, दैट इज शॉर्ट, शॉर्ट इंट और साइंड शॉर्ट इंट। आप या तो शॉर्ट इंट लिख सकते हैं या तो फिर साइंड शॉर्ट इंट लिख सकते हैं। ओके, रिमेंबर शॉर्ट इंट और साइंड शॉर्ट इंट। ओके, एंड टू स्टोर दिस टाइप ऑफ वैल्यू इट विल रिक्वायर 1 बाइट। ओके, इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए वो कितना बाइट देगा आपको, 1 बाइट मिलेगा। ओके, सिंपली 1 बाइट में आप उसकी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। अगर उस रेंज की बियॉन्ड वैल्यू अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप उसमें उसके लिए ये डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते, इतना ध्यान में रखना। ओके, टू स्टोर दिस टाइप ऑफ वैल्यू इट विल रिक्वायर 1 बाइट। ओके, 1 byte it will require to store shortened or signed short. Okay, and the range is minus 128 to 127, minus 128 to 127. Okay, minus 128 to 127 is the range of value for shortened or signed shortened. Remember, okay, minus 128 to 127 इस रेंज के अंदर की कोई भी वैल्यू आप शॉर्टेंड और साइंड शॉर्टेंड में स्टोर करके रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग रेंज। ओके, नहीं सॉरी, अनसाइंड शॉर्टेंड, अनसाइंड शॉर्ट अनसाइंड शॉर्ट है, साइंड देखना है, साइंड अगर है तो अनसाइंड भी रहना है। ओके, जैसे शॉर्ट इंट है, साइंड शॉर्ट इंट है तो अनसाइंड शॉर्ट इंट भी होना चाहिए, है ना, साइंड शॉर्ट इंट है तो अनसाइंड शॉर्ट भी होना चाहिए। इस यहाँ पर हमने दोनों क्वालिफायर यूज करके एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया, इंटीजर बेसिक डेटा टाइप के लिए, है ना, इंटीजर इस बेसिक डेटा टाइप के लिए दोनों क्वालिफायर का यूज करके हमने एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया। ओके, दैट मींस आई कैन से दैट हम लोग बोल सकते हैं कि क्वालिफायर का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डेटा टाइप है ना। And to store this unsigned short int value, again it will require 1. Okay, इस unsigned short int की वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी 1 बाइट रिक्वायर्ड। ओके, अब अनसाइंड बोला है तो उसमें नेगेटिव वैल्यू रहेगी क्या, नहीं, उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी, इट्स वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 255। ओके, 0 to 255। Okay, its value is 0, sorry, its value range is 0 to 255, means unsigned short int इसको स्टोर करने के लिए 1 बाइट रिक्वायर्ड है और उसकी रेंज क्या है, 0 to 255, मींस 0 से लेकर 255 के बीच में आप कोई भी वैल्यू यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आप अनसाइंड शॉर्ट इंट डेटा टाइप पे यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ, लेकिन वहीं पर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू के लिए आपको साइंड शॉर्ट इंट यूज करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू के लिए अलग बिट हम लोग स्टोर करते हैं। ओके, और एंड दैट बिट इज अवेलेबल इन द साइंड शॉर्ट। ओके, नेक्स्ट, अब हमने साइंड भी देखा, अनसाइंड भी देखा, शॉर्ट भी देखा और अनसाइंड शॉर्ट भी देखा। अब हमको क्या यूज करना है, लॉन्ग क्वालिफायर, है ना, साइज में जो साइज क्वालिफायर में जो दूसरा टाइप है, शॉर्ट तो देखा हमने अभी, अब हमको लॉन्ग क्वालिफायर का यूज करके इसके लिए डेटा टाइप देना है, प्रोवाइड करना है। सो हाउ कैन वी डिफाइन लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग, लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग, लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग, दैट मींस अब साइंड लॉन्ग इंट बोला हमने तो यहाँ पर क्या आएगा, उसकी रेंज में क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि साइंड बोला है।
Okay, and to store this type of value, it will require 4 bytes. It will require 4 bytes. लॉन्ग वैल्यू है, लॉन्ग रेंज की वैल्यू है, तो ज्यादा मेमोरी इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा, एंड टू स्टोर दैट टाइप ऑफ वैल्यू इट विल रिक्वायर 4 bytes. Okay, 4 bytes are required to store this type of value, long int or signed long int. Okay, and its range starts from minus 21474 83648 to 21474 83647. Okay, so in between these range of values, any value we can store into long int or signed long int. Okay, इस रेंज की वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू अगर होगी तो आप उसको स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? आइदर वी कैन यूज लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग इंट. ओके, हम लॉन्ग इंट यूज कर सकते हैं या तो फिर उसको साइंड लॉन्ग इंट भी यूज कर सकते हैं. ओके, एंड टू स्टोर दैट टाइप ऑफ वैल्यू इट विल रिक्वायर 4 bytes. ओके, इट विल रिक्वायर 4 bytes. 4 बाइट आपको अवेलेबल करा के देगा उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए. ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज है, बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए ज्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड है ना. दिस साइज इन बाइट्स विल सेज दैट दिस टाइप ऑफ वैल्यू विल रिक्वायर दिस मच अमाउंट ऑफ मेमोरी, है ना. जैसे कि आप लोग किचन में काम करते हो, है ना, आधा किलो केजी के लिए छोटी बर्नी लगेगी, वैसे अगर 2-3 किलो के लिए आपको बड़ी बर्नी लगेगी, है ना, बड़ा पॉट लगेगा. ऑब्वियसली इन द सेम वे छोटी वैल्यू को स्टोर करने के लिए छोटा मेमोरी मीन्स कम मेमोरी रिक्वायर्ड है, बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड. ओके, सो हेंस दे हैव इंक्रीज द size. Okay, they have increased the size of memory. Okay, to store that type of value. Okay, क्योंकि ज्यादा वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी ज्यादा रिक्वायर्ड है ना, ऑब्वियसली, है कि नहीं. So hence, to store the value within the range of this particular, okay, it will require 4 bytes. Okay, and to store that type of value, we have to use this long int or signed long int. long int और signed long int के लिए 4 bytes रिक्वायर्ड है और उसकी रेंज क्या है ये आप भी समझो. ओके, -214748364 और टू 214748364. Okay, next, unsigned long unsigned unsigned long int. Okay, now हाँ बोलो. सर आपने थोड़ा नीचे लिखा तो कैमरा आपको ऊपर से नीचे वाला दिख नहीं रहा, आप थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए. ओके, एक मिनट. Now is that visible to you? यस सर. Okay. Now unsigned long int. Unsigned long int. Okay. अब unsigned बोला है, that means there should be no negative value, है ना. unsigned बोला है, so there should be no negative value. Okay, in the range में आपकी negative value नहीं रहेगी. Okay, and to store that type of value again 4 bytes will require. Okay, उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए 4 bytes are required. Okay, so I am going to write over here size, that is 4 bytes. 4 bytes are required to store unsigned long int. Okay, unsigned long int. Okay, to store that type of value 4 bytes are required. Okay, now the range of unsigned long int is 0 to 4294 96 72 okay, 0 to 42949626725. Okay, so this is the range of values, okay, that we can store into the unsigned long int. Okay, ये रेंज की कोई भी वैल्यू हम लोग अगर यूज करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में तो अनसाइंड लॉन्ग इंट डेटा टाइप हमको यूज करना पड़ेगा. ओके, एंड टू स्टोर दैट टाइप ऑफ वैल्यू इट विल रिक्वायर 4 bytes.
उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको 4 बाइट्स मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो कंपाइलर का काम है कि कितना मेमोरी उसको प्रोवाइड करना। ओके, एंड दैट विल बी डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप। आपने कौन सा डेटा टाइप यूज किया है उस टाइप के अकॉर्डिंग वो मेमोरी उस वेरिएबल के लिए अलोकेट करेगा। ओके, हमको बताने की जरूरत नहीं कि अभी आपको इतना मेमोरी उसको अलोकेट करना है। ओके, कंपाइलर खुद ब खुद क्या करेगा, उस डेटा टाइप के वेरिएबल के लिए उतना मेमोरी अलोकेट कर देगा। ओके, हमको अलग से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान में रखो। ओके, हमको अलग से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करना है कि हाँ अभी आपको इतना मेमोरी उसको अलोकेट करना है। ओके, वी नो नीड टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऐसे इंस्ट्रक्शंस हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे, हमको क्या करना है, हमको हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन लिखने हैं। ओके, कंपाइलर खुद क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि उस टाइप के वेरिएबल के लिए कितना मेमोरी एलोकेट करना है। ओके, दैट इज ऑलरेडी फीडेड इन द सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑलरेडी फीडेड इन द सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी हमने फिट करके रखा है कि उस टाइप के वेरिएबल के लिए कितना मेमोरी उसको अलोकेट करना है, दैट इज ऑलरेडी फिटेड। ओके, ऑलरेडी फिट करके रखा है, बस हमको क्या करना है, प्रॉपर डेटा टाइप यूज करना। हमको क्या करना है, प्रॉपर डेटा टाइप यूज करना है, मीन्स उस रेंज के बियॉन्ड अगर कोई वैल्यू आती है तो वही डेटा टाइप यूज करना है। ओके, समझ में आ रहा है, जो वैल्यू जिस रेंज में आ रही है उसी टाइप का हमने यूज करना है, वही डेटा टाइप यूज करना है, कोई और नहीं। अगर इन केस आप अनसाइंड लॉन्ग इंट के रेंज की वैल्यू अगर आप यूज कर रहे हैं और अगर आप डेटा टाइप लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग इंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, आपके सॉफ्टवेयर में आपके प्रॉब्लम में सॉरी प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फॉर दैट रीजन प्रॉपर डेटा टाइप वी हैव टू यूज। ओके, पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा ना। ये क्यों दिया है उन्होंने, ये उन्होंने क्यों प्रोवाइड किया, ताकि आप प्रॉपर डेटा टाइप यूज करो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, है ना। किसी एक रेंज की वैल्यू आप किसी और डेटा टाइप पे स्टोर नहीं कर सकते ना। आर यू गेटिंग, जैसे कि अगर हम अनसाइंड लॉन्गिंट की रेंज देखते हैं, जैसे कि 4294967295, इस वैल्यू को अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में स्टोर यूज करना है, ओके, तो मैं कोई और डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं, मुझे वही डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा अनसाइंड लॉन्गिंट, ताकि वो वैल्यू उस टाइप में स्टोर हो जाए, क्योंकि उसके लिए अलग मेमोरी रिक्वायर्ड है ना। भले यहाँ पर भी मेमोरी सेम है लेकिन उसका टाइप तो अलग है ना, उस टाइप की रेंज अलग है, इस टाइप की रेंज अलग है। अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव वैल्यू स्टोर करना चाहूँ तो कर पाऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि ये अनसाइंड लॉन्गिंट है। अनसाइंड लॉन्गिंट में मैं नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने ये चीज प्रोवाइड की आपको कि प्रॉपर वैल्यू के लिए प्रॉपर डेटा टाइप आप यूज करो। किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी डेटा टाइप हम लोग यूज नहीं कर सकते, इतना ध्यान में रखना। ओके, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही आपको ये चीज प्रोवाइड की। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, ओके, नेक्स्ट। तो अभी आप देख रहे हैं कि सिंपली हमने बेसिक डेटा टाइप कितने देखे थे, 4 ही देखे थे, है ना। आप सिंपली आपके पास दो बेसिक डेटा टाइप से हमने कितने डेटा टाइप क्रिएट किए देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो बेसिक डेटा टाइप थे। क्वालिफायर का यूज करके हमने दोनों के लिए कितने डेटा टाइप क्रिएट किए, 8 डेटा टाइप क्रिएट किए, है ना। That's why I'm going to tell you that qualifier is used to increase the list of data types. Okay? तो अभी इंटीजर डेटा टाइप और क्वालिफायर का यूज करके हमने 6 डेटा टाइप्स क्रिएट किए इंटीजर के लिए। ओके, नाउ वी विल सी फ्लोट डेटा। फ्लोट यहाँ पर लिखूंगा, दिखेगा आपको, यहाँ पर लिखू क्या, इरेज करूँ, is that visible this portion of board? Okay, float, it is float. Okay, now float basic data type। okay, अब नाउ इसके लिए उन्होंने ज्यादा डेटा टाइप
यूज नहीं किए, मीन्स यहाँ पर आपको क्वालिफाइड यूज नहीं करना है फ्लोट के लिए, हम लोग डबल के लिए यूज करेंगे। ओके, सो float, for float no qualifier we have used, float only, simply we have to use float, means float के लिए उन्होंने कोई क्वालिफायर यूज नहीं किया। ओके, सिंपली दे हैव गिवन float। ओके, and to store this type of value 4 bytes memory will be required। ओके, 4 byte memory will be required to store float type of value। Okay, and the range of this float value is 3.4 e minus 38 to 3.4 e plus 30. This e is nothing but exponent. Okay, this e is nothing but exponent. Minus, sorry, 3.4 e minus 38 to 3.4 e plus 38. This is the range of float value। Okay, means इस रेंज की वैल्यू को अगर आपको स्टोर करना है तो आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा? फ्लोट डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। ओके, एंड योर कंप्यूटर सिस्टम विल allocate 4 bytes of memory, okay, to store that type of value। फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपका कंप्यूटर सिस्टम कितना मेमोरी allocate करेगा? 4 byte it will allocate। okay, next is last but not the least, that is double। डबल, डबल। ओके, सो डबल के लिए अगर आप क्वालिफायर यूज करना चाहते हैं तो सिंपली या तो डबल यूज करो या तो फिर लॉन्ग डबल, लॉन्ग डबल। ओके, either double we can use or long double। okay, तो सिंपली लॉन्ग क्वालिफायर उन्होंने यूज किया फॉर डबल डेटा। ओके, डबल के लिए आप सिंपली डबल यूज कर सकते हैं या तो फिर लॉन्ग डबल यूज कर सकते हैं। डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए योर कंप्यूटर सिस्टम विल allocate 8 bytes, 8 bytes will allocate। डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए योर कंप्यूटर सिस्टम विल allocate 8 bytes। ओके, एंड द रेंज ऑफ दैट डबल टाइप वैल्यू इज 1.7 e minus 308 to 1.7 e plus 30। okay, 1 point, it's decimal, 1.7 e minus 308 to 1.7 e plus 308 is the range of value for double data type। okay, is the range of value for double data type, and to store that type of value your computer system will allocate 8 bytes, your computer system will allocate 8 bytes। okay, and to store long double data type value your computer system will allocate 10 bytes। okay, 10 bytes, 10 bytes will be allocated to store long double type value। okay, 10 bytes will be allocated to store long double type value, and its value of range is 3.4e minus 4932 to 1.1 e plus 492। 3.4e minus 4932, 3.4e minus 4932 to 1.1e plus 4932 is the range of value for long double type। okay, is the range of value for long double data type, and to store that type of value your system will allocate 10 bytes। to store that type of value your system will allocate 10 bytes। okay, it's 3.4। okay, 3.4।
Okay, there is a decimal point. 3.4e minus 4932 to 1.1e plus 4932 is the range of value to store long double data type. Okay, this is the range to store long double data type, and to store that type of value 10 bytes will be allocated. To store that type of value 10 bytes will be allocated. Remember. Okay, so is that clear to you everyone? Data types. Yes, sir. Yes, sir. Any doubts related to this? No, sir. Nobody have any doubts, है ना? किसी को डाउट नहीं है? हम आगे बढ़ेंगे. Okay. Now constants. Our new topic is constants. Hello. Shall I erase this? Hello, sir. Okay. Hello. हाँ बोलो. Sir, क्या? what's that E in the float and number? E, that is nothing but the exponent part. Exponent. तो हम आगे भी देखेंगे. मैं आगे में बताने वाला आपको कि E का कैसे यूज करना है. Okay. Now constants. Constants. Anybody, can you tell me what is constant? कोई भी बता सकता है. कांस्टेंट मीन्स क्या होता है? हाँ बोलो. आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बोलो फिर से. ठराविक. अच्छा, ठराविक कैसे है? समझ में नहीं आ रहा. ठराविक यानी मराठी का ठराविक. यस एग्जैक्टली, दैट कैन नॉट बी चेंज, है ना. कांस्टेंट वैल्यूज आपने देखा होगा. पाई वैल्यू है ना, दैट इज 22.7, है ना. 22.7, 22/7, है ना. आवाज आ रही है मेरी? ओके, पाई वैल्यू 22/7. पाई की वैल्यू 3.14 होती है. वैल्यू ऑफ पाई 3.14, है ना. जैसे पाई की वैल्यू होती है कांस्टेंट, है ना, दैट कैन नेवर बी चेंज. दैट कैन नेवर बी चेंज. ओके, कुछ भी हो जाए, आप चेंज हो जाओ, लेकिन वो वैल्यू चेंज नहीं होगी. आर यू गेटिंग? That is nothing but the constant. Okay, that is nothing but the constant. So the proper definition is constant is the value that can never be changed during execution of program. Constant value is nothing but the entity that can be that is nothing but an entity. It is a value. Constant is nothing but a value that cannot be changed, during execution of your program. Okay, that is nothing but the constant. Constant is a value that can never be changed, okay, during execution of a program is called constant. Okay, so there are n number of constants are there. हमने अभी तक आप फिजिक्स में वगैरह पढ़ते होंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. पाई इज द वैल्यू. मैथमेटिक्स में आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन यूज पाई वैल्यू. ओके, इस तरीके के जो कांस्टेंट्स होते हैं, ओके, वो क्या होता है? वो कभी भी चेंज नहीं होते. ओके, इन द सेम वे हम हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोग्राम में भी
ऐसी वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कभी भी चेंज नहीं होगी. ओके, समझ में आ रहा है? सो दोज आर नथिंग बट द कॉन्स्टेंट्स. ओके, द वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज. ओके, दैट इज नथिंग बट द कॉन्स्टेंट. ओके, so these constants are divided into three categories: numeric constant, character constant, and string constant. These constants are divided into three categories: numeric constants, character constants, and string constants. Okay, these numeric constants are again divided into two categories: integer constant and real constants. Integer constants and real constants. These numeric constants, नाम में लिखा है numeric, that means there should be only numbers. There should be only numbers. No character is allowed inside this. Okay? यहाँ पर मीन्स इस एरिया में आपको कोई कैरेक्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा. ओके, समझ में आ रहा है? इस एरिया में विद इन दिस पर्टिकुलर एरिया no character is allowed. Okay, because it is numeric constant, means only numbers are allowed. Only numbers are allowed. That is numeric constant. These numeric constants are again divided into two categories, that is integer constant and real constant. Integer constants and real constants. Integer constants जैसे कि 10, 20 जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है. ओके, those are called as integer constants. ओके, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, those are called as integer constants. Okay, like decimal, float, decimal, octal, hexadecimal. Okay, these integer constants are divided into three categories: decimal, octal, hexadecimal. Okay, decimal, octal, and hexadecimal. Okay, these are the subcategories which are concerned of these integer constants. Okay, integer constants की ये तीन टाइप है: decimal, octal, and hexadecimal. Okay, and real constants, that is nothing but floating point values. Okay, or float. रियल कांस्टेंट्स को ही हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज. ओके, सो इन दिस एरिया ओनली numbers are allowed, no character is allowed. Okay, and in that particular area simply character should be there. Okay, simply characters ही रहेंगे वहां पर. कोई नंबर, हम नंबर भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं. अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो बोलते हैं लोग, है ना, A1, A2, A3, these are the characters. Actually, even these integer values also considered as a character in the string. For instance, हम integer value के जो भी numbers हैं उनको भी हम लोग as a string consider करते हैं, but that should be enclosed within double quotation. तो हम आगे में देखने वाले हैं. ओके, डोंट बी बॉदर. लेकिन फिलहाल हम लोग ये ध्यान में रखना है कि in this particular area simply numbers should be allowed. Only numbers are allowed. No character is allowed. Okay, no character is allowed. न्यूमेरिक कांस्टेंट बोला है तो सिंपली उसमें नंबर्स ही अलाउड है, कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है. ओके, आर यू रीडिंग? रिमेंबर, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के भी कुछ रूल्स है. ओके, फर्स्ट वहां पर एटलीस्ट एक डिजिट होना चाहिए. ओके, न्यूमेरिक कांस्टेंट to define this type of constant,
to define this type of constant, then you should follow some rules. आपको कुछ rules follow करने हैं. First, पहला rule है at least one digit should be there. Okay. Okay, at least one digit should be there. एक डिजिट तो भी होना चाहिए. ओके, तभी हम उसको न्यूमेरिक कांस्टेंट बोलेंगे. अगर एक भी डिजिट नहीं है इसका मतलब वहां पर कोई नंबर नहीं है. अगर नंबर नहीं है तो हम उसको न्यूमेरिक कांस्टेंट कैसे बोलेंगे? ओके, इसीलिए वहां पर उन्होंने बोला कि एटलीस्ट वन डिजिट शुड बी देयर. ओके, नो स्पेस इज अलाउड. ओके, और नो डेसिमल पॉइंट इज अलाउड. सेकंड, आपको डेसिमल पॉइंट वहां पर अलाउड नहीं है. बोलो. हाँ बोलो. अरे बेटा लेक्चर चालू है. हाँ बोलो. अभी बस थोड़ी देर में करना. ओके, नो डेसिमल पॉइंट, नो स्पेस, नो कॉमा इज अलाउड. ओके, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है, कॉमा अलाउड नहीं है, स्पेस अलाउड नहीं है. ओके, नो डेसिमल, नो स्पेस, ओके, नो डेसिमल पॉइंट, स्पेस, कॉमा इज अलाउड. ओके, यहाँ पर न्यूमेरिक कांस्टेंट में आपको, सॉरी एक्चुअली इट शुड बी इंटीजर कांस्टेंट. ओके, न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट, स्पेस और ओनली. नो स्पेस और कॉमा इज अलाउड. डेसिमल पॉइंट तो हो सकता है ना यहाँ पर, रियल पॉइंट, रियल कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट हो सकता है. हम न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करें. ओके, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिक कांस्टेंट. सो विद इन द न्यूमेरिक कांस्टेंट डेसिमल पॉइंट इज अलाउड. ओके, सो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को हम लोग इरेज कर रहे हैं. नो स्पेस और कॉमा इज अलाउड. स्पेस अलाउड नहीं है और कॉमा भी अलाउड नहीं है. जैसे कि आप बोलते हैं ना रुपीज लिखते हैं, रुपीज, है ना. है ना, इस तरीके से आप रुपीज लिखते हैं, रुपीज में कॉमा देता है बीच बीच में, है ना. सो दैट कॉमा इज नॉट अलाउड. ओके, कॉमा आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट में अलाउड नहीं है. एज वेल एज स्पेस इज आल्सो नॉट अलाउड. स्पेस, स्पेस भी अलाउड नहीं है. मीन्स वैल्यू के बीच में, मीन्स वैल्यू में जो भी नंबर्स है उनके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते. ओके, सो हेंस नो स्पेस एंड कॉमा आर अलाउड. ओके, एंड next is, third is your numeric constant, either it may be negative or positive. Okay, either it may be negative or positive. Okay, either it may be negative or positive. आपकी न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. ओके, समझ में आ रहा है इतना. न्यूमेरिक कांस्टेंट हमारा एक तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. सो these three things you should know. At least one digit should be there to make it as a numeric constant. No space और comma is allowed, means वहां पर space भी allowed नहीं है और comma भी allowed नहीं है. और आपकी न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू एक तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. ओके, so these three things you should know about the numeric constant. These numeric constants are divided into two categories, integers and real. Okay, तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. Okay, is that clear to you everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I am going to take your attendance. Nobody will left. कोई भी लेफ्ट नहीं होगा. अगर लेफ्ट होगी तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा. So now I am going to take your attendance.